If you've been to Delhi, there's this place near ITU that is WHO, World Health Organization. World Health Organization के just 50 meters adjacent पे there's a huge slum. जहाँ पे apparently health के नाम पे कुछ भी नहीं है. अरे बाप रे. Just got stuck with a few children. वो नाला पूरा एरिया वो नाले का स्ट्रेच है, तो वहाँ पे नाले के पास बहुत बच्चे नाले में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके लिए वो स्विमिंग पूल है. क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है. नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस. टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड ही हैज हिज ओन एनजीओ. और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एनजीओ में सिर्फ जनता की सेवा की भावना से ही लगे हुए हैं. आज हमारे साथ हैं आकाश टंडन जी. हाय आकाश, कैसे हैं आप? Thank you so much for having me here. It's really amazing to be here. Okay, so we got Akash was waiting for 40 minutes before we started. There was some technical glitch. Thank God he's still smiling. So, बताइए आकाश जी, tell me about you first, like from your childhood till what exactly is molding your life? Tough question. It's like I'm just a normal person, like any other person in the world. I have been here in Noida since childhood. Schooling के बाद engineering करी, engineering के बाद I'm. आप भी engineer हैं? Yes, unfortunately yes. क्या बात है? And it's been almost 10 years I've been working as a marketing professional. अच्छा. So that's how the journey has been. So you're working in marketing as well as you have an NGO. Yes. अच्छा, I thought full time इधर चले नहीं, गए. full time नहीं है. हाँ. It's like two jobs parallelly. One which gives me money, second which gives me satisfaction to utilize that money. That's true. तो अभी what your father is doing, like, or your mom? So my mom is again a teacher. So वहीं से I have learned to be a good teacher, you can say. And my father has his own business. He is again from Delhi. So which sector in Noida you are 50. from? अरे क्या बात, आप तो पुराने लोग हैं. I've been there for almost 28 years. हाँ, I know. नोएडा में जो सेक्टर 50 में रहता है, 34 में रहता है, 32 में रहता है, वो पुराने अमीर लोग हैं. जितना चाहिए उतना है, that's it. उसकी कोई परिभाषा नहीं. जितना चाहिए उतना है कि कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि अंबानी को भी जितना चाहिए उतना है उसके पास. Okay, so marketing में which organization you're working these days? I'm working with Kazul right now. Okay, and what exactly is your job profile in there? I'm handling the complete marketing team there. Okay. So All right. marketing Would you like to elaborate or? it's okay. Okay. When have you decided कि हम non-governmental organization शुरू करना चाहते हैं? You want the honest answer? Please. Okay. So I have been involved in social work since my early, you can say, college days, school end days, college days. And I actually, during my college days itself, I was connected to a few NGOs, and that's when I actually decided that I don't want to be a part of any NGO. When we got into this, it was, you can say, it was just accidental. There's this place, if you've been to Delhi, there's this place near ITU that is WHO, World Health Organization. World Health Organization के just 50 meters adjacent पे there's a huge slum. जहाँ पे apparently health के नाम पे कुछ भी नहीं है. अरे बाप रे. स्कूल नहीं है कोई. Like I'm talking about 2014, late 14, early 2015. कोई स्कूल नहीं है, कोई proper water supply नहीं है, electricity नहीं है. There was nothing there. So while passing through, अब उसी के नीचे से, मतलब उसी के ऊपर से actually metro जाती है. So whenever किस जगह पे exactly? ITU. अच्छा, ITU. Just next to Supreme Court. अच्छा. Next to a few kilometers away from Delhi CM's office, a few kilometers away from the headquarters, Delhi Police headquarters. इसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा. Exactly. अच्छा. And as I said, 100 meters adjacent to WHO building. I mean, the only thing that separates both the location is a nala. अगर आप नाला पार कर लो तो आप WHO के अंदर है, आप WHO से नाला पार करके आओ तो आप स्लम के अंदर. So वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो we were just intrigued कि let's just go and explore. We were already involved in some of the other tasks. So I, along with my friends, we went there just to explore कि okay, what's happening here, right? वहाँ पे गए, we were actually shocked कि ये दिल्ली है, because हमने वैसे दिल्ली नहीं देखी. हमारे लिए दिल्ली is different. Like, even when you're in Noida, you can say that Delhi is still much better than Noida. For 15 की बात है.
उसके बाद फिर वी रियलाइज कि मतलब यहाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब सोशल वर्क के नाम पे व्हाट कैन यू डू, यू कांट हेल्प दीस पीपल फाइनेंशियली, आप सबको उठा के कहीं बाहर नहीं ले जा सकते, आप किसी के लिए हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, इतने लोगों को आप खाना नहीं दे सकते। तो क्या पॉपुलेशन होगी वहाँ की? 10,000 प्लस। 10,000 प्लस, अच्छा। सो वहाँ पे वी वर वेरी एक्साइटेड व्हेन वी वेंट देयर कि कुछ करेंगे। जब वहाँ पहुंचे वी वर एक्चुअली डिप्रेस्ड कि क्या करें। सो वी वर कमिंग बैक कि क्या कर सकते हैं एंड देन उसके बाद हमने थोड़ा सोचा, एक बार हम फिर गए दोबारा से कि कुछ तो करना है, एंड दैट्स वेयरइन वी जस्ट गॉट स्टक विद अ फ्यू चिल्ड्रन। वो नाला, पूरा एरिया वो नाले का स्ट्रेच है, तो वहाँ पे नाले के पास बहुत बच्चे नाले में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके लिए वो स्विमिंग पूल है। उनको नहीं पता कि वो पानी कितना गंदा है, कितना साफ है, उनको ये पता है कि बहुत सारा पानी आ रहा है, तो एंजॉय। तो जस्ट थॉट कि लेट्स जस्ट इंटरैक्ट विद देम, एंड वहाँ से वो एक यू कैन से एक आइडिया आया, आइडिया कह लो उसको, यू कैन से एज एन इनिशिएटिव कि लेट्स जस्ट स्पेंड सम टाइम विद दीस चिल्ड्रन, कि जो उनके फैमिली है, जो उनका बैकग्राउंड है, वो जिस कल्चर में है, जिस एनवायरनमेंट में है, जिस तरह की जिंदगी जी रहा है, एटलीस्ट लेट्स ट्राई एंड बिल्ड समथिंग फॉर देम, इवन इफ इट्स लाइक 0 से 1 इज ऑलवेज बेटर। वी नेवर थॉट अबाउट कि हमें 100 करना है, बट 1 2 3 5 भी होगा, इट इज स्टिल बेटर। And that's wherein we actually started interacting with those children. वहाँ से हमने 5 बच्चों से फिर 10 बच्चों से ऐसे स्टार्ट किया कि हम इनको पढ़ाएंगे, because over the time we have also realized कि आप किसी की कितना भी आप सोशल वर्क कर लो, सब खत्म हो जाता है, एजुकेशन नहीं होती। एजुकेशन आप जिस दिन से सीखोगे तब से लेके आप जब तक you are not on the end of your life, it will always be there with you. अब अच्छी है तो अच्छी रहेगी, बुरी है तो वो बुरी रहेगी। आप कितनी भी एक अच्छी सोसाइटी बना लो, आप कितने भी अच्छी बिल्डिंग्स बना लो, आप कितने अच्छे हाईवेज बना लो, रोड्स बना लो, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आप सब कचरा। एक पौराणिक कथा है इसी पे कि लक्ष्मी जी वाज वेरी प्रिटी एंड सरस्वती जी वाज सो सो। तो उनको ब्रह्मा ने सरस्वती को लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया था कि आप जिसके पास जाओगे वो प्रॉस्परस हो जाएगा, बट ही शुड बी स्केयर्ड कि ही माइट लूज यू। बट सरस्वती को उन्होंने कहा था कि इफ यू गो विद समबडी यू विल ऑलवेज बी देयर, and you can actually change someone's life. That's true. With knowledge, with education. So वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया, we started off with 10 children. उनको हम ऐसी गली के बाहरी नाले के पास हम सड़क पे पढ़ाने लगे। अच्छा। वहाँ से फिर लोगों को देखा, उनमें हो गया कि अरे कुछ लोग हैं जो आते हैं हर हफ्ते पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो they were not used to of education. So उनको हमें कभी चॉकलेट देनी पड़ रही है, कभी टॉफी देनी पड़ रही है। So उनको वो पूरे गांव में विदिन अ मंथ फैल गया कि अरे कुछ भैया दीदी आते हैं, वो टॉफी बांट। उनको ये नहीं था वो पढ़ाते हैं, उनको पता है कि वो कॉपी लेके आते हैं, पेंसिल लेके आते हैं, फ्री में सामान मिलता है, फ्री में सब कुछ होता है। तो वहाँ से इट गॉट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर एंड बच्चे बढ़ गए। विदिन आई गेस 2 months वी वर हैविंग मोर देन 50 चिल्ड्रन देयर। वाओ। एंड अब बच्चे बड़े, उनको बाहर बिठा के पढ़ाने में, अब जिनके बच्चे पढ़ रहे थे उनको ये था कि अब सड़क पे बैठ के उनको ऑब्वियसली बुरा लगता, तो दे सेड कि आप यहाँ पे मत पढ़ाओ, एक कम्युनिटी मंदिर है वहाँ पे, अच्छा, आप वहाँ की स्पेस ले लो है ना, वहाँ पे आराम से पढ़ो। तो वहाँ से एक्चुअली दिस होल इनिशिएटिव टुक प्लेस। वी वेंट देयर, एज आई सेड, सो यू स्टार्टेड फर्स्ट, देन you registered as an NGO. It took a while. It took us 3 years. So awesome. For 3 years, full-fledged, we ran it like a proper volunteer group. We were 5 people. We started off with 5 people. Then, as and when we started sharing it on social media that this is what we're doing, people started coming in कि हमें भी करना है. Eventually, within 3 years, you can say हमारे almost 3 centers खुल गए थे. Because हमारे volunteers आ रहे थे. Volunteers को था अच्छा ये location दूर पड़ रही है. उन्होंने 3 महीने 4 महीने काम किया. मैं कहीं और करता हूँ, मुझे वहाँ पे स्टार्ट करना। We said okay, आपको जहाँ भी करना है, it's not something कि मेरी कोई दुकान है जो कोई चला के ले जाएगा, नहीं, आप करो। So वहाँ से volunteers they started picking up multiple location, and बच्चे हमारे जो main center है जहाँ पे I'm talking about 50 students, वहाँ पे more than 150 students हमारे first year में हो गए थे। अच्छा जी। अब 150 बच्चों का मतलब अगर आप ideally if you take a ratio of 5:1, तो आपको कम से कम 30 आपको चाहिए एक्टिवली जो हर वीकेंड आके पढ़ाए। You want water? No, it's okay. 30 लोग अगर आप एक्टिवली चाहिए, that means आपको कम से कम 150 लोगों के साथ टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि 150 लोग हाँ बोलेंगे तब 30 लोग will come on ground. Because people से हम आएंगे, but end में सबको काम भी आ जाता है, सब बीमार भी पड़ जाता है किसी के साथ। And then since it's an open place, हम कोई structured area में नहीं पढ़ाते, कोई shed नहीं है,
कोई रूम्स नहीं है, इट्स लाइक ओपन प्लेस, बारिश भी आती है, धूप भी आती है, गर्मी भी आती है। तो डस्टर और वो लेके जाते होगे? हमने वहाँ पे छोटा सा रूम वहीं पे अरेंज कर रखा अच्छा, है, वहीं अच्छा। पे फैमिलीज ने हमें दे रखा है कि आप सामान अपना यहीं पे रख दो, तो अपना वहाँ जाते हैं, अपनी चटाई बिछाई और बच्चे अपने ग्रुप के हिसाब से पढ़ते हैं। तो अब जैसे अभी इसी वीकेंड की बात है, अभी तो इस वीकेंड थोड़ा मौसम सही था, बट अब गर्मियों में टेम्परेचर वुड गो अप टू 45-46 डिग्री। ट्रू ट्रू। तो बच्चे वहाँ पे तब भी पढ़ेंगे, वॉलंटियर्स तब भी वहाँ आएंगे। सो इट्स बीन 8 years नाउ। 8 years. वो Good बच्चे आ रहे job. हैं, 1000 से ज्यादा बच्चे अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। Wow. सो 2018 में भी इवेंचुअली रियलाइज कि हमारे पास वॉलंटियर्स नहीं आ रहे थे, राइट? क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि सबको चाहिए कि हमें कुछ मिले। वी वर कम्प्लीटली वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमने आज तक, हमारे पास एक भी वॉलंटियर ऐसा नहीं है जो पेड है, एक भी इंटर्न ऐसा नहीं है जो पेड है, एक भी कोर टीम मेंबर नहीं। सो वी हैव 5 कोर टीम मेंबर्स एज ऑफ नाउ, जो सारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे हैं। कोई पेड नहीं है, वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड द फर्स्ट कंडीशन वाज कि अगर आप खुद कमा रहे हो तो आप आओ, तभी आप। अदरवाइज One question I have, what about the Delhi government schools? We have heard so much about them. यस, तो उसका क्या है, मतलब वो क्यों नहीं कर पा रहे इनको? वो मैं वही बता रहा हूँ। ये जो बात है 2015 की है। लास्ट 8 years में ये एक, मतलब आई वुड से कि ये एक इम्पैक्ट हमें दिखा है। ऑलमोस्ट 90 to 95% चिल्ड्रन आर एक्चुअली नाउ एडमिटेड टू स्कूल्स। जो आपके यहाँ थे वो भी चले वो गए। भी चले गए। Great, अब उसमें भी great. अब एक कैच है कि वो स्कूल जा रहे हैं। इवन अभी हमने लास्ट एक, अभी गोल गुंबद के पास एक पूरा शेल्टर होम है, वहाँ पे अराउंड 50-60 और फैमिलीज वहाँ पे रहती है। सो वी वेंट देयर, वी डिड अ लिटिल सर्वे कि शेल्टर होम में शायद इनको जरूरत उनको भी थी। बट वहाँ भी जब हम गए थे, बोले कि स्कूल तो जाते हैं, सामने स्कूल है, वो प्रिंसिपल ने आके एडमिशन करा दिया। अच्छा। बट अब कंडीशन है कि वो स्कूल में 6 घंटा तो चलेगा बच्चा। वो क्यों जाते हैं? उनको फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, फ्री खाना मिलता है, चलेगा, माँ बाप भी भेज देते हैं, जाओ चलो एक टाइम का खाना नहीं दोगे। बट वो 6 घंटे के बाद वो बच्चा वापस वहीं आता है, जब उसकी अगेन ही कम्स एटमॉस्फेयर जो है आपका, हाँ। घर वाले पढ़े लिखे नहीं है, आसपास के लोग पढ़े लिखे नहीं है, आसपास कुछ नहीं है, देयर इज नो मोटिवेशन। वो पढ़ के भी आएगा तो वो किसको देखेगा? हम अपने घर पे आके किसी को देखते हैं, तब यू नो हमें वैसा बनना है। सो वो घूम फिर के, तो हमने उनको देखा, वो स्कूल से पढ़ के आए हैं, बट स्कूल से पढ़ के, अभी हमने एक पश्चिम बिहार में भी एक सर्वे किया था, वहाँ पे भी झुग्गी में सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बट वो 2 बजे स्कूल से आ जाएंगे और उसके बाद दे विल पिक देयर बैग्स और वो अपना कूड़ा उठाने चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है बोतलें बेच के पैसे मिलेंगे। Let me ask you one more question. So this so-called you know, the political chest thumping of the central government as well as the Delhi state government, what is it? If there are thousands of kids who are not being educated properly, ये क्या chest thumping है? I'll tell you, जब हमने स्टार्ट किया था, हमें भी ये लगता था, राइट, कि क्या है, there's a big gap, you know, these people they don't know। वो होता है, मतलब पॉलिटिक्स में, I won't go deep into this कि वो पॉलिसीज होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, बट कुछ ना बहुत जेन्युइन इश्यूज है। I'll tell you a few। अब जैसे एक बच्चा है, हम बोलते हैं बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, उसका रीजन किसी को नहीं पता, राइट? बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि माँ बाप दोनों डेली वेज वर्कर है, वो दिन के 250-300 रुपये कमाते हैं, वो दोनों सुबह घर चले जाते हैं। घर में एक बड़ी लड़की है और एक छोटा लड़का है। अब लड़की या तो स्कूल जा सकती है या वो उस बच्चे को संभाल सकती है, घर के काम करेगी, नहीं तो उसकी माँ को रुकना पड़ेगा, उनकी मंथली सैलरी। तो ये इश्यूज है। कई बच्चे ऐसे हैं, अब क्योंकि वो स्कूल तो जा रहे हैं, बट जैसे मैंने बोला, स्कूल में वो अब हम भी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े, बट ट्यूशन की बिना एक पॉइंट के बाद आप नहीं कर सकते अगर आपकी फैमिली में अच्छा कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो जाते हैं 5th 6th 7 में 8 में जाके वो फेल हो जाते हैं। टीचर, वो 2-3 साल फेल होंगे, टीचर बोलेगी अब आप 8 में रहोगे, बच्चा बड़ा हो गया। अब हमारे पास कई बच्चे हैं 13-14 साल के बच्चे, जिनको बेसिक इंग्लिश लिखनी पढ़नी नहीं आती। तो वो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, बट एक पॉइंट के बाद उनको होता है यार अब तो हम बड़े हो गए, हमें स्कूल वाले बोलते हैं छोटी क्लास में बैठो, तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। या 10th के बाद अब उनको आगे कोई मोटिवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि घर वाले, अगेन, गवर्नमेंट कैन गिव यू रिसोर्सेज, वो आपको यूज करना भी सिखा सकती है, बट एट द एंड आपको यूज करना है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि देयर इज अ गैप बिटवीन पॉलिसीज एंड यू नो पॉलिसी मेकर एंड पॉलिसी टेकर। तो वो जो गैप है, हम उसको थोड़ा सा, कई लोग बोलते हैं कि तो स्कूल जा रहे हैं, आप इनको फिर भी पढ़ा रहे हो। सो हम उनको वो एजुकेशन नहीं दे रहे जो स्कूल में मिल रही है। हम उनको बेसिक ये एटिकेट्स दे रहे हैं कि आपके स्कूल के बाद जो आपकी लाइफ है, दिस इज नॉट योर लाइफ, दिस इज समथिंग दैट हैज बीन गिवन अपॉन यू। इसके बाहर भी हम निकल सकते हो। सो पीपल लाइक मी, लाइक यू, volunteers, like many good volunteers, good teachers, good faculties from good universities, they come there and teach, वो multiple sessions लेते हैं, वो
for these children they are like motivation. वो उनके लिए सुपर हीरोज है. That's कि true. ये आके हमें पढ़ा रहे, मुझे इनके जैसा बनना है. I'll give you an example. There was this child with us who has been a part of our school for almost 6-7 years now. उसको 6-7 साल हमने अच्छे से जबरदस्ती बुलाया, बिठाया, सब कुछ करा. वो आता है, हो जाता है, you get attached. वो आता है, मिलता है, बैठता है, हंसता है, खेलता है, पढ़ता नहीं है. अच्छा. उसको पढ़ोगे भी तो कभी इधर है, कभी उधर है. अच्छा, ये भैया ने टफ काम दे दिया, मैं दूसरे भैया के पास जाके कुछ और करूंगा. उसको 6 साल 7 साल हो गए, वो नहीं पढ़ा. अभी अच्छा. 9th में फेल हो गया. अच्छा. नहीं पढ़ा तो फेल हो गया. बट अभी लास्ट नवंबर दिसंबर के आसपास हमारे पास एक वॉलंटियर आए हु वाज अ स्केच आर्टिस्ट. अच्छा. अब वो ऐसी रैंडमली आया कि मुझे स्केच सिखाना. मैंने कहा ओके यू कम लेट, जो हमारे सेंटर पे आके स्केच सिखाते थे, तो जिन बच्चों को स्केचिंग में, ड्राइंग में इंटरेस्ट था, दे स्टार्टेड टेकिंग. सो वो उनके साथ ऐसे ही बैठ गया कि ठीक है बना रहे. वो ड्राइंग में इंटरेस्टेड था. उसने देखा, सीखा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. अब वो इतना ज़्यादा पैशनेट है अबाउट स्केचिंग. पिछले 6 महीने में वो इतना इम्प्रूव हो गया है. उसको हमने कलर प्रॉपर हो जाए अराउंड 40-45 पेंसिल्स का सेट होता है, वो लेके दिया. और वो अब वो आधे घंटे में वो आपका स्केच बना सकता है. क्या बात है. और अब वो That was his real talent. That was his real talent. और अब बिकॉज ऑफ दैट टैलेंट अब वो आके हमें बोलता है कि मुझे पढ़ा दिया करो. हाँ, थोड़ी हाँ. सी इंग्लिश सिखा दोगे. अब क्यों सीखनी है? मैंने ना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है. हाँ, अब उस पे मुझे कैप्शन भी डालना होता है, हाँ, वीडियो एडिट That's भी true. करनी होती है, वो इंग्लिश में. सो अगर बच्चे को आप थोड़ी सी मोटिवेशन दे दो, राइट, तो वो अपने आप उसको पढ़ने का मन करता है. नहीं, मुझे ये लगता है कि इफ यू अगर किसी भी बच्चे को उसका रियल टैलेंट जब पता चल जाता है तो उसको क्या होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो मैथ्स है, जो बेसिक मैथ्स है 10वीं तक, ठीक है, जो बेसिक इंग्लिश है, उसको उसकी ज़रूरत तब महसूस होती है जब उसको अपना रियल टैलेंट पता चल जाता है. मुझे को ये भी चाहिए भैया. वो यूज कहाँ होगा? मुझे पढ़ा तो रहे हो, मैं यूज कहाँ करूँगा, कहाँ यूज करूँगा. Exactly. So we are actually trying to give them a platform जहाँ पे there are artists, there are dancers, there are singers, there are musicians, they are coming, they are spending time with these children. और उनके लिए वो अगर वो नॉर्मल नाले पे सिर्फ खेलते रहते तो शायद उनको पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनके लिए. कई लोगों के आर्ग्यूमेंट में सुन चुका हूँ कि दे वांट टू लिव लाइक दैट, एंड विच आई डोंट बिलीव. कि लाइक आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव लिव्ड माई चाइल्डहुड इन झुग्गीज, right, because my father was security guard, so very poor people we used to be. तो मुझे तो नहीं लगता कोई रहना चाहता है अपने मन से किसी झुग्गी में. अपने मन से तो कोई भी नहीं रहता. बट देयर इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि अगर इनको सरकार घर बना के दे भी देती है तो वो उस घर को किराए पे चढ़ा देते हैं और फिर उसी झुग्गी में रहने लग जाते हैं. उसका रीजन है, ठीक है, आपने अगेन जैसे मैंने बोला, आपने उनको घर दे दिया, घर को सस्टेन कैसे करेगा? घर का खर्चा होता है, उसका अपना खर्चा होता है. मैंने जैसे अभी बोला, आप सड़क पे जाते हो, ठीक है, आपने किसी को खाना दे दिया. अब बोलोगे मैं तो सोशल वर्कर बन गया भाई, मैंने 50 लोगों को खाना खिला दिया. बट वो उसका खाना जैसे ही खत्म हुआ, अगले 6 घंटे बाद वो फिर से भूखा है. That's true. आपने उनको उनकी इनकम, आपको उनको इनकम देनी है, उनको अपनी लाइफ जीने के उनको वेज देने. आपने उनको घर दे दिया, उसको बिल ही नहीं भर पाएगा, बिजली का जो बिल आएगा. भर भी दिया तो खाना कहाँ से खाएगा? तो एट द एंड वो झुग्गी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके बाकी एक्सपेंसेस जो उस घर के अराउंड है वो निकल जाए. उनको लगता है कि चल घर से मेरे को 10-15 हज़ार किराया बचेगा, मेरे तो पूरे महीने की सैलरी है. और आज के टाइम पे हम कितनी भी डेवलपमेंट दिखा रहे हो, यू टॉक अबाउट मनी एंड एवरीथिंग, वो लगते हैं वी हैव द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन इंडिया. आज भी जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनके मैक्सिमम लोगों की जो मंथली सैलरी इट इज लेस देन 10,000. उसमें उनको घर भी चलाना है, अपने बच्चे भी पालने हैं, उनके स्कूल का भी देखना है, अपना भी सब कुछ देखना, अपना ट्रांसपोर्टेशन भी देखना. कई लोग बोलते हैं दिल्ली में बस किराया फ्री कर दिया, ये पैसे वेस्ट कर रहे हैं. आप कभी उस एरिया में आके देखो, वो लेडी जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, जो सुबह बर्तन मारने कोठियों में जाती है, उसके लिए वो 10 रुपए की टिकट की क्या वैल्यू है? उसके बच्चों के लिए वो 10 रुपए की. आज आपके लिए मैं यहाँ पे आप एक्सपेंस से काम कर रहे हो, मे बी अभी निप टूट जाएगी, अभी चलेगा, यू विल थ्रो इट आउट, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. ये पेन आप किसी बच्चे को वहां जाके दे दो, उनके लिए 10 रुपए लाइक ये तो कितनी बड़ी चीज हो गई. एक वी हैव सीन एक टॉफी के लिए, एक पेंसिल के लिए, एक बच्चा जो टूटी हुई पेंसिल से काम कर रहा होता है, उसका मन नहीं लग रहा, आप उसको नई पेंसिल दे दो, वो 2 घंटे बैठ के उससे लिखता रहेगा. उसको चाहे समझ कुछ ना है, बट ही एंजॉयज बिकॉज उसको लगता है मेरे को नई पेंसिल मिली. और हमारे लिए उस पेंसिल की क्या वैल्यू है? 3 रुपए, 4 रुपए. सो इट्स डिफरेंट वेज ऑफ सीइंग थिंग्स. किसी को सिर्फ ये कह के कर देना कि बिकॉज आई डोंट एंजॉय दिस तो ये सब सबके लिए नहीं होगा. इट्स वो वहां पे हमें जाके एक रियलाइजेशन है कि लाइफ इज वेरी डिफरेंट जहां हम रहते हैं और जहां वो रहते हैं.
हाउ टफ इज दिस जॉब, लाइक यू नो, जैसे आप जाते हो, आप बोलते हो कि जैसे मुझे याद है कुछ लोगों ने एनजीओ शुरू करा था चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए, बहुत बड़ी पिटाई हुई उन लोगों की, सुना आपने? नहीं सुना? बहुत पिटाई हुई उन लोगों की, चाइल्ड मैरिज रोकने वालों को बहुत पीटा गया है. हाउ टफ इट वाज टू ब्रिंग पीपल इन, वो कितना मुश्किल होता है? सोशल वर्क आई वुड से इट्स अ थैंकलेस जॉब. मतलब आप सिर्फ तब तक कर सकते हो जब तक आप खुद एंजॉय करोगे. आप अगर ये करने जाओगे कि मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा, हमारे यहाँ मतलब मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. हम हमारे 3-4 फेस्टिवल्स हैं जो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली हुआ, होली हुआ और आपका क्रिसमस, ये 3 फेस्टिवल्स पे वी सेलिब्रेटेड वेरी नाइसली. सो होली पे हम हमेशा नए बैग्स बांटते हैं. वी डू क्राउड फंडिंग. हम वॉलंटियर्स को बोलते हैं कि आप 1-1, 2-2 बैग लेके आओ, एंड ऐसे करके हम 1000 बच्चों के लिए बैग अरेंज करेंगे. दिवाली पे हम लोगों का पूरा स्टेशनरी का सेट बनता है, वो जाता है. क्रिसमस पे हम लोग कंबल बांटते हैं. ये पिछले 8 साल में, कोविड के 2 साल छोड़ के हम कंटिन्यूसली 6 साल हमने किया. तो अब हम एक सेंटर पे हमारे अभी जो करंट आईपी में हमारे 280 के आसपास बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जो हमें पता है कि ये आएंगे. हम 10 कंबल एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, 10 बैग एक्स्ट्रा लेके जाते हैं. बट जब सामान बढ़ता है तो ऑब्वियसली कई बार 5-6 बच्चे एक्स्ट्रा आ जाते हैं और वो एक्स्ट्रा हम निकाल के उनको बांट देते हैं. That's true. हम 290 बच्चों को बांट देंगे. बाहर 3-4 बच्चे जो पढ़ने नहीं आते, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका हमें पता नहीं, वो सिर्फ क्योंकि पढ़ रहा है देख के आ रहे हैं, वो बाहर आके हमें गालियां देते हैं. अच्छा. कि आपने हमें ही नहीं दिया, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है. तो वो भी सुनना पड़ता है. जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो वो आके लड़ते हैं हमसे. आप ये भी भला करना आसान काम नहीं है. वही, अगर आप इसमें कुछ वही बोल रहे हो, अगर आप कुछ लेने के मोटिव से जा रहे हो, हाँ. तो आप हमेशा यू नो यू बी डिप्रेस्ड. अब जहाँ हम बट उस टाइम, उस मोमेंट पे एज अ ह्यूमन यू फील बैड, डोंट यू? यार यार, मतलब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ. a lot of times, बहुत बार लगता है. वॉलंटियर्स कई हमारे वहाँ रो देते हैं, कई परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं करना. यू नो, इवन आई फील डीमोटिवेटेड कि क्यों ही कर रहे हैं और किसके लिए ही कर रहे हैं. बट अगेन, मैंने जो बोला, देयर इज अ परसेप्शन ऑफ सीइंग कि हम 3 लोगों की गालियां देख रहे हो या जो 290 लोगों का वो देख रहे हो. सो अच्छा, नेगेटिविटी के साथ एक खास बात है. नेगेटिविटी जो है वो बड़े से बड़े पॉजिटिविटी को एक बंदा निपटा सकता है. लाइक यू हैव गिवन इट to 300 people, you're satisfied with that, whatever you're giving. One guy comes, curses it all of you, and all your brains are screwed. And that's my personal experience ki negativity would only be there with you till the time you're thinking about it. The moment you stop, you know, and that goes with all your problems. जब आप problem के बारे में सोचना खत्म कर दोगे, problem खत्म. वो आएगी ही नहीं. But as a human, don't you think we need training for doing? बोलना बहुत आसान है. But it screws everybody's mind for a moment. Exactly. But again, as I said, it's been more than 8 years now. 8 years तो यहीं भी हो गए. So सब देख लिया है, लोगों की गालियाँ देख ली है. Thick skin develop कर लिया. अब फर्क नहीं पड़ता. अच्छा. अब कई लोग आते हैं ये ऐसे में, पता है ये बोलेंगे, 10 लोग होंगे बाहर जो लड़ेंगे और जो गालियाँ भी देंगे, पर ठीक है. इवन जहाँ हम पढ़ाते हैं, अब क्योंकि वो एक मंदिर की स्पेस है, तो हमारे कुछ जो हमें देख रहे हैं काफी टाइम से, उनके बच्चे हमसे पढ़े, तो वो बोलते हैं आप पढ़ाओ. सो देयर इज अ कमिटी फॉर दैट मंदिर. मंदिर की खास बात है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी मंदिर होता है, और उनकी कमेटी होती है, और उसके पास चंदा भी आ जाता है, जो लोगों के पास खाने के लिए पैसा. बिल्कुल. तो वहाँ पूरी कमेटी है, एंड वो कमेटी में भी फाइट रहती है, क्योंकि एक आधी कमेटी मेंबर्स हमें सपोर्ट करते हैं, आधी को क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, हम यू नो एंटी रहेंगे कि तुम हमारे फेवर हो. सो उनसे भी फाइट होती है. तो हमारी जगह के लिए भी फाइट होती है, हमारी पेरेंट्स से भी फाइट होती है, हमारे बच्चों के लिए भी फाइट होती है. सो दैट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल. उसके बाद फिर जो हमें सामान चाहिए, जो डोनर्स आते हैं, अब कई लोग आएंगे, दिल भी लाइक हमें तो फोटो खींचनी है, हमें तो वीडियो बनानी है. हम बोलेंगे क्लास थोड़ी खराब करोगे, आपको देना है, आप एंड में करो. नहीं हमें तो दिल ऑल्सो भी लेकिन ये हम तो इतना सामान लेके हमें फोटो नहीं खींचनी थी. सीरियसली. सो इंडिया में सोशल वर्क इज, अगर आप रियल, आई मीन इफ यू आर रियली डूइंग समथिंग ऑन ग्राउंड, be ready to face problems. हाँ, because इनके लोग एक्टिंग करते हैं तो वो भी हो जाता है. Like like those filmy people, you've seen those picture वाले जो नहीं होते हीरो हीरोइन की बच्चों का अचानक से झोपड़ी में जाके बिस्किट बांटने लगे, वीडियो बनाया डाल दिया. That's a different thing. But what you are doing is really tough. It's not easy. क्योंकि रोज जाके, it's like how should I relate it to a story? It's like having a hot girlfriend and getting married to her. Isn't it? As long as she's your girlfriend, you're very happy because you're meeting her for those 2 hours, 3 hours, and she's at her best at that point in time. The day you got married to her, what you're doing, you're going to them every day for 365 days.
तो वो रियल कलर्स आए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि सबके अपने कलर्स हैं। पहले दिन तो बहुत प्यार से बात करते हैं सब। एंड लोग नहीं, आपके अपने फ्रेंड्स होते हैं, यू नो, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कि क्या है इसमें, क्यों है। वो एक और कहावत है कि लोगों को भगत सिंह सबको चाहिए बट दूसरे अपने घर में नहीं अपने चाहिए। घर हाँ, में नहीं वो बाबा भी का भी वही हाल है, बट बेटा बीइंग योगी इज द बेस्ट थिंग, बट यू डोंट बी। वो दूसरे करेंगे, तो दैट इज, आई गेस दैट्स अ रियलिटी एंड उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया था, आई सेड कि दिस इज समथिंग दैट आई डू आउट ऑफ पैशन एंड ऑल द पीपल, बिकॉज़ एज आई सेड वी डोंट पे एनी फॉर वॉलंटियर्स। जितने लोग आते हैं वो सारे अपने मन से आते हैं। वॉलंटियर्स के मन में ये फीलिंग नहीं आती, अरे these guys are making money, they're not paying us? ये भी तो इशू होगा एक। क्लियर करते हैं, फंडिंग हमारी है, so we are like zero funded, we don't get any organizational funding. So you don't even apply for Delhi government funds? No, we don't do that. You don't do that. First of all, जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे, be it government or be it a corporate, there are a lot of restrictions. We are not full time people जो हम जाके उनके साथ उतना कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ दिमाग खपाएं, पेपर वर्क करें। प्लस हमें बहुत अभी छोटी छोटी हेल्प है, जहाँ हमें लगता है कि ज़्यादा है वहाँ पे हम डायरेक्ट डोनर्स के साथ कनेक्ट करते हैं कि आप खुद हैंडल कर लो, यू वांट टू स्टे आउट ऑफ मनी, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ, जहाँ पे द रीजन आई डिडंट वांट टू स्टार्ट माई ओन ऑर्गेनाइजेशन वाज दिस, बिकॉज जहाँ बोलते हो एनजीओ, लोग बोलते हो तुम चोर हो। एनजीओ कम्स विद, I have a lot of questions in regards to the same. एनजीओ बोलने के बाद ही सबको लगता है पता है ये क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल लोगों की बातचीत। भाई अमीर आदमी आता है, 1 करोड़ पकड़ाता है, उसमें से बोलते हैं 10 लाख मेरे, 90 लाख उसके, ब्लैक के व्हाइट हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी समस्या है। एनजीओ मतलब ये, यूर राइट। तो आप एक्सप्लेन करिए, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू स्टीलिंग मनी फ्रॉम द पीपल? वी डोंट गेट एनी मनी। हमारे पास जो लोग आते हैं, पहली बात तो हमें we don't take money, right? हमारे जैसे मैंने बोला, हमारे सिर्फ 3 इवेंट्स होते हैं, उसमें we do this mass drive because उसमें हमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है। अब सपोज हम 1000 बैग खरीद रहे हैं, अब मैं 1000 बैग मैं क्लास के हिसाब से डिफरेंट कर सकता हूँ, बट मैं 1000 डिफरेंट सैंपल नहीं ला सकता। आपने कुछ दिया है, कोई और आएगा, हाँ, that's true, लड़ाई हो जाएगी। So what we do is आपको 50 करने हैं, आप हमारे साथ चलो, 50-50 करके जिसको करना करो। अदरवाइज उस टाइम पे भी टेक मतलब ऑनलाइन डोनेशंस, बट वो सिर्फ बैग के लिए। उसके अलावा इट इज ओनली प्योरली आप स्टेशनरी लेके आओ, खाने का सामान लेके आओ। इफ यू वांट टू डू इट मॉनेटरीली, हमारे पास बच्चे हैं, आप उनकी स्कूल फीस स्पॉन्सर कर दो। तो हमारे नोएडा में ही जो सेंटर है, वहाँ पे बच्चों की स्कूल फी 500 रुपये है। आप 500 रुपये 1 महीने का आप उनको दो, उनकी फैमिली को दो, उसको नोटबुक चाहिए, बुक चाहिए, आप डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करो। वी ट्राई टू स्टे आउट ऑफ इट, बिकॉज हमारा जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है वो यही है, हमारी स्टेशनरी, खाने का सामान, मैथ्स, अभी गर्मी आ गई तो फैंस, दैट्स इट। तो मैं आपके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूँ, आप 1 करोड़ रुपया लेते हो लोग अमीर लोगों से और उसका कुछ % रख लेते हो, बाकी उनको वाइट करके लौटा देते हो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हमारे 1 करोड़ का खर्चा ही नहीं है। हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है। इस पे मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ। सो अभी 2016-17 की बात है, मेरे पास और ये रक्षाबंधन वाले दिन की बात है। I was there with my family and I just received a call from Germany, WhatsApp call। अच्छा। And मैंने उठाया, there was this lady की आपका एनजीओ, मैंने कहा हाँ, अच्छा मैं ऐसे ना कुछ लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली, तो आपके पास लड़कियां हैं एनजीओ? मैंने कहा हाँ ठीक है, तो ऐसे हम कुछ करना चाहते हैं अगले 1 महीने में, तो वुड यू बी ओके? ठीक है, सो आई विल कनेक्ट यू विद माय इंडिया टीम, दे विल गेट इन टच। ऐसे ओके। 2-3 दिन बाद इंडिया टीम से फोन आता है, ऐसे हमें अराउंड 50 लड़कियों के लिए वी वांट टू डू अ प्रॉपर स्टेशनरी केटर, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें करनी है। ऐसे ठीक है, आप बताओ, तो आप ना एक बार आ जाओ मीटिंग करने। मैं चले गया, हॉस्पिटल में उनका ऑफिस था, डेंटिस्ट, इट वाज अ डेंटल क्लिनिक। अंदर जाके जैसे ही मैं बैठता हूँ तो पीछे से राजेश तलवार आते हैं। अच्छा। heard about Mr. Talwar, so आके बैठते हैं and he's like, okay, this is for my daughter, so they run an proper NGO for their daughter। राजेश तलवार एक बार बताइए, I have no idea, sorry। Have you watched Talwar movie? तलवार, अच्छा हाँ ठीक। आरुषि तलवार फादर की, अच्छा। So he said because उनका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा You would have been more than surprised, right? No, I was surprised just to see him, यार ये क्या हुआ? Approach क्यों नहीं किया? So said because of those multiple cases, so we don't want to be in public, but because of our daughter, it was something related to our daughter. We want to do something for the girls outside. So आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने उनको पूरा ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे आप आओ, सामान लेके आओ। इससे ठीक है, मैं आपको कितना सामान चाहिए आप मुझे बताओ। मेरा बजट है 10, 12, 15 हज़ार तक का, मैं उतने का सामान ला के दे दूंगा। कॉन्वर्सेशन खत्म होते ही एंड में ही आस्क्ड मी कि आपका ऑफिस कहाँ है?
मेरे को ऑफिस नहीं है, हमारा सेंटर है वहीं पे, इफ यू वांट टू मीट अस वी विल मीट यू एवरी वीकेंड। तो आपने ऑफिस क्यों नहीं खोला? मैंने बोला ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं एनजीओ में तो ऑफिस होना चाहिए। मैंने कहा अगर मेरा ऑफिस होता तो ये 10,000 रुपये पहले मेरे ऑफिस से किराया जा रहा होता। That's true. he was happy, he said ठीक नहीं अब तो मैं करूँगा। एंड उनके बाद वो पूरे उन्होंने 50 का बोला था, वो एक्चुअली सारे बच्चों के लिए वो प्रॉपर वो सेट लेके आए। एंड he was too into that thing because हमें हमारा खर्चा नहीं, मैं आपसे 90 लाख ले भी लूँगा तो मैं लगाऊंगा। There are courts, there's police, there's every structure to take out whatever they want to do. But if a person wants to do social work, and if I have a person who needs help, who am I to stop them? That's good. It's I can't take away someone's right just because I have my personal beliefs. True. And ये हमारे जितने भी centers हैं, we keep this belief कि irrespective of gender, irrespective of caste, irrespective of whatever religion you follow, we don't care. But honestly speaking, in India, we believe in the courts. Whatever decision the courts are giving, I mean, that's the final, according to me, if you ask me personally. I mean, I understand there is this question which everybody has. However, if the court says no, it means no. Okay, let's go. In that case also, yeah. My personal belief is कि मेरे जो personal belief है, it should always stay with me. I'll tell you, हमारा जो first center खोला था वो एक वाल्मीकि मंदिर में था। ठीक है, वहाँ पे कई जो दूसरे रिलीजन्स थे वो दे वर स्केप्टिक हम यहाँ भेज रहे हैं। आज वहाँ पे हर रिलीजन के बच्चे आके पढ़ते हैं। अभी हमारा रिसेंटली एक सेंटर खुला है सुंदर नर्सरी के पीछे। हम लोग बाहर एक खुले मैदान में, देवर अराउंड 75 चिल्ड्रन जो खुले मैदान में कूड़े के ढेर के पास पढ़ते थे। देयर वाज दिस मस्जिद जहाँ के उन्होंने मौलवी ने देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ही सेड कि आप वहाँ मत पढ़ो, हमारे मस्जिद के बाहर का पूरा एरिया खाली है, आप 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे पढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए इट डजंट मैटर कौन सी जगह है, कौन सा बच्चा है, लड़का है, लड़की है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमारे लिए सिर्फ एजुकेशन है। मेरे लिए वॉलंटियर वो आपका सपोर्टर है, वो कांग्रेस का सपोर्टर है, वो बीजेपी का सपोर्टर है, इट डजंट मैटर। वो 2 घंटे जो वो है वो सिर्फ एक टीचर है। But you still vote, right? I still vote. Okay. And that's my if you want to be a see, voting is my right. I know. Like it's my right. It's a duty also, it's a right also. But my perception should not affect anyone. That's true. हमारे इंडिया में it is बहुत बुरी जो चीज़ है, हम लोग व्यक्ति पूजन में लग जाते हैं। We believe in God में। हम किसी भी इंसान को भगवान बना देते हैं। Be it politician, be it. But this is not India's problem. This is a world issue. Exactly. Every country has this So nonsense. we keep this topic out of us कि मैं personally कुछ भी हूँ, when I enter that particular space where I am teaching a child, वो सिर्फ education होगी। ना पे वहाँ पे उस बच्चे को अलाउड है कुछ बोलना। वो आपस में डिफरेंशिएट, अब कई हमारे जब बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो वाल्मीकि एरिया, तो वहाँ पे भी कुछ अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो बच्चों का भी आपस में रहता है कि ये तो ये है। तो हमारे वहाँ पे सब एक साथ पढ़ते हैं। वो बच्चों को भी अलाउड नहीं कि दे कैन डिफरेंशिएट अमंग्स ईच अदर। Parents just look at it. I mean, we are in 2023 and we still discussing issues with the castes. How sad is that? We are talking about underprivileged children. I'll tell you, I have been working with so many professionals. और मुझे लगता है कि जब हम बचपन में थे, हमें लगता था कि हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो there would be a state or an environment wherein we'll forget about this. But if you look at now, I mean, there are educated people who are still into open Instagram, YouTube, Twitter. Have you heard about a very interesting story? I'm sure you might not have heard about it so far. American organizations like Google, Facebook, do you know they're not hiring people from lower castes? No. Are you aware of it? So what they do is, the people like you and me, we belong to upper caste. I am one upper caste who was so poor when I was growing up that I never had that feeling of being upper caste. Anyways, so when we were, I was reading a report that what happens is that there are people in Google and in these, and it is happening from both the sides. For example, you are lower caste and you reached a vice president position. Now you make sure that the people you hire belonging to the scheduled caste only. ठीक है? But वो impact कम है because कम लोग पहुंच रहे हैं उस लेवल पे। अपर कास्ट वाले क्या कर रहे हैं? They are telling their American white people or the black people कि इंडिया में IIT कानपुर में मेरा कोर्स 4 साल का चला है, लेकिन इस नाम के आदमी का कोर्स और इस लास्ट नेम के आदमी का कोर्स
5 साल चला है, मेरे इतने स्कोर थे तब मेरा हुआ था, इसके इतने पे ही हो गया था. So he might be, they never say that will be, but they say he might be a substandard engineer. Okay, so ये मुद्दा छेड़ा गया है. This is happening on this scale. Okay, and what is happening, and these are the fissures of our society. And what happens is that the American government is using that to pressurize the Indian government when they, it's like, you're talking to me, I'm an Indian government, you're American government. You say, I say, you know what, I need this. And you're like, yeah, I'll give you, but there are issues like these as well in your society. So what I'm doing is I'm pushing these issues bigger, making them bigger. So next time when you come to negotiate, I have an upper hand. तो हमारा जो ये बोल रहे हो ना कि कास्ट के इश्यूज है, ये केवल लोकली नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये हमें ग्लोबली भी इम्पैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए. सो यू आर नॉट सेलिंग गुड्स और यू आर नॉट सेलिंग एनी मेंबरशिप्स, नथिंग लाइक दैट? We do. So people who are not able to come on ground and volunteer on a regular basis, it's membership. You can say it's more than a sponsorship. हमारे पास जो बच्चे हैं जिनको हेल्प चाहिए, हम उन बच्चों को उनसे कनेक्ट कराते हैं so that they can directly help them. So that's a kind of a membership. So we treat it कि okay, you are supporting one of our child, we'll take you as a member. अच्छा. So वो 500 रुपीस की मंथली फी है. उसके ऊपर if you want to donate them say notebooks या अब जैसे अभी सीजन सेशन चेंज हुआ था उसमें पूरा सेट आया था नोएडा में. So फर्स्ट क्लास का भी सेट 2000 रुपए का था. So उसकी 500 रुपए की फी, 2000 का वो प्लस यूनिफॉर्म शूज वगैरह वो सब जो हमारे डोनर उन्होंने अरेंज करा के डायरेक्टली बच्चे की फैमिली को दिया. ही मेड श्योर कि हाँ वो बच्चा स्कूल है. So that's the kind of membership we have. What is it one thing which you think that you changed and which there are a lot of people use the word proud, but I don't think. What is that which made you happy, which is like gave you the satisfaction? कुछ अच्छा किया. कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसा if you want to talk about. एक इंसिडेंट तो मैंने बताया आपको, जो स्केच आर्टिस्ट वाले इंसिडेंट्स बहुत सारे. फर्स्ट आई गेस ब्रॉडली जो है जो ये 2 घंटे हैं हमारे पास, अगर एक सेंटर की बात करें तो हमारे 280-290 स्टूडेंट्स यहीं पे आते हैं. तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन हमारा सबसे पुराना नोएडा सेंटर, दिल्ली वाला वो सबसे पुराना सेंटर है. तो उसके बाहर ही मेट्रो स्टेशन के नीचे है उसला. तो मेट्रो में ही कई बच्चे हैं जो अपने बाहर पानी का ठेला लगाते हैं, जूस का ठेला लगाते हैं. पहले तो बीड़ी सिगरेट बिकती थी तो वो भी बेचते थे, अपनी शॉप चलाते हैं. बट उनको पता है कि जो 2 घंटे हैं सैटरडे और संडे को भैया दीदी आके पढ़ाते हैं, वो अपनी शॉप बंद करेंगे, वो कॉपी लेकर पढ़ाएंगे और हमसे पहले वो पहुंच जाते हैं. वो अपने घर में झाड़ू लगाएं या ना लगाएं, वहाँ पे वो पूरा एरिया पहले साफ करेंगे. 2 घंटे में अगर आपने उनको 1.5 घंटे में उठा दिया कि कोई शरारतें कर रहा है, बात कर रहा है, आप उसको उठा के बाहर भेज दो कि आज तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम नहीं पढ़ा रहे. विदिन 5 मिनट्स वो अपने पेरेंट्स को बुला के ले आएगा लड़ने के लिए कि इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे पढ़ा नहीं रहे. आप मुझे बताओ लास्ट टाइम जब आप किसी बच्चे के प्राइवेट स्कूल में आपने देखा हो कि वो बच्चा किसी टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया हो तो पेरेंट्स को लड़ने के लिए लेके होगा कि टीचर मुझे पढ़ा नहीं. हमारे छोटे से स्पेस में 250 बच्चे अलग अलग क्लास के, अलग अलग एज के, सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं. आप आज के टाइम पे किसी प्राइवेट स्कूल के 2 सेम क्लास के सेक्शंस कंबाइन कर दो और टीचर उनको अगर पढ़ा दे बिना चिल्लाए, बिना शोर मचाए, बिना हंगामा करे, तो आप मुझे बताना. और वहाँ पे हमारे तो अभी करिकुलम क्या है? हमारा करिकुलम जो है बेसिक हमने टॉपिक्स यूज कर रहे हैं. हर क्लास में आइडियली सपोज 5th क्लास का बच्चा है तो उसकी नोटबुक जो CBSE डिफाइंड है उसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जो नेसेसिटीज होते हैं कि ये तो बच्चे को आना ही चाहिए. अगर बच्चे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती कोई बात नहीं, बट कुछ बेसिक टर्म्स हैं इंग्लिश के जो आने चाहिए. फॉर एग्जांपल टेबल सबको आना चाहिए, मैथ्स बेसिक मैथ्स सबको आनी चाहिए. सो हमने वो टॉपिक हर क्लास के डिफाइन कर रखे. तो जो भी बच्चा आता है वो किस स्टैंडर्ड के लेवल का है, वो किस किस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका एक हम क्लास डिफाइन कर देते हैं कि ये क्लास है, इस क्लास के 1 साल में ये 20 टॉपिक पढ़ाएंगे. वो टॉपिक अब एक्टिविटीज That is great. I'm really happy. अभी रिसेंटली देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम US, ex Microsoft के एम्प्लॉइज हैं. तो दे हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव जहाँ पे दे आर डेवलपिंग एन ऐप फॉर द NGOs एक्सक्लूसिवली. So वो अपना CSR के थ्रू they are raising funds, but they are eventually they are serving. So they are catering to Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and India. So 4 countries के साथ अभी कर रहे हैं. वहाँ के NGOs के लिए they are developing this app. So India में we are the only organization जिनको उन्होंने pick किया है and they are developing this app for us. So we are actually experimenting that.
वो एक बार ऐप डेवलपिंग देन दे ओपन इट फॉर दी ऑल दी एनजीओ. सो वी आर दी ओनली पार्टनर्स फॉर देम इन इंडिया. Just to learn कि how it's going to work. So they want to see the real issues कि क्या issues आते हैं, how they can help. So उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले बच्चा रजिस्टर करेगा, वॉलंटियर रजिस्टर करेगा. अभी क्या होता है, वॉलंटियर्स कितना आ रहे हैं, इट्स ऑल मैनुअल वर्क कि वो आ रहा है नहीं आ रहा, कितने घंटे बैठ रहा है. वॉलंटियर आएगा, क्लास होगी, ही विल टेक. अब सब बच्चों की फोटोज के थ्रू हमने फेस मैप कर रखा है. आपके बच्चों को ग्रुप आप पढ़ा रहे हो, 6 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 50 बच्चे, फोटो खींचो, बच्चों की ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लग जाएगी. वॉलंटियर जिसने फोटो खींची उसकी अटेंडेंस लग जाएगी. उसने उस दिन उसको क्या पढ़ा है बच्चे को प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, उसी में वो अपना करिकुलम खोल के देख सकता है. सो एक ऐप के थ्रू यू कैन एक्चुअली मैनेज कि कौन सा बच्चा कितने टाइम से पढ़ रहा है, कितनी क्लासेस अटेंड करी है, रेगुलर आ रहे हैं. बिकॉज मैनुअली इतने बच्चों को करना इज नॉट पॉसिबल. So these people are developing this proper app जिसमें we can actually on an individual level we can track volunteers as well as children की उनके पे क्या impact है. So a lot of people they come लोगों को अब एक ये भी प्रॉब्लम है, हर चीज उनको ना नंबर्स में चाहिए, इम्पैक्ट दिखाओ क्या हो. भले आप फ्री में कर रहे हो. नहीं ठीक है, फ्री में करूँ अलग चीज है. मतलब मैं पढ़ लिया, इसका मैं इम्पैक्ट क्या दिखाऊं. हाँ. एक बच्चा अगर मैंने वो स्केच आर्टिस्ट का दिखा, उसका मैं इम्पैक्ट कैसे दिखाऊं. वो स्केच बना रहा है, ये इम्पैक्ट नहीं है. इम्पैक्ट इज कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कितना ग्रूम हुआ, कितना डेवलप हुआ. आज के टाइम पे आप किसी स्लम में चले जाओ, अगर वो बच्चा आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, जस्ट आप उसको बता नहीं सकते कि स्लम में रहता है. वो हाथ आने से पहले अपने हाथ पैर धो के आता है, वो आता है तमीज से, बेसिक्स पे काम कर रहे हैं. बेसिक्स पे काम कर रहे हैं और उनको एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि आगे. अभी हमारा एक और पुराना बच्चा, वो पिछले 8 साल से पढ़ रहा है, अभी 10th उसकी कंप्लीट हुई थी सॉरी. तो उसको हमने अभी कंप्यूटर कोर्स प्रॉपर करवाया. तो उसकी 7,500-8 हज़ार फी थी जो हमने अगेन स्पॉन्सर के थ्रू करवाई थी. उसने पूरा एक्सेल बेसिक, जावा वावा जो बेसिक पूरा एक उसका 3 महीने का कोर्स था बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ 10th के बाद जो 11th में एडमिशन होता है. उसने पूरा वो कोर्स किया है और अब उसका इज लाइक कि मैं 12th में अगर इतने परसेंट लिया तो मेरे को आप लैपटॉप दिला. वाह. There are students who are running their own Instagram pages, people are making their reels and वो प्रॉपर जो होता है कि हाँ उनको लगता है कि हम we have a vision. और इंसान को जब एक विजन मिल जाता है फिर वो चलना वो अपने आप सीख लेता है. आपको बस उनको वो रोड देनी की. कोई ऐसा पेरेंट है जो आपके पास आया हो, थैंक यू सो मच दैट you've done this for us, for my son, my daughter. सीढ़ी जो बच्चा मैं बता रहा हूँ, इसके पेरेंट्स, इनके घर में 3 भाई बहन हैं और पेरेंट में मम्मी इज हाउस, फादर इज द ओनली पर्सन हु वंस, वो भी ड्राइवर है तो उनकी सैलरी इतनी है. तो उनकी इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन अब सारे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए. किसी के पास डिवाइस नहीं थी बट स्कूल्स ने बोल दिया ऑनलाइन. तो जिनके पास डिवाइसेस है वो पढ़ रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं पढ़ रहे हैं. हमारे सेंटर्स ही बनते. सो हम and nobody thought about it. एंड अगेन अब आप बच्चों को डिवाइसेस दे भी रहे हो, हाउ डू यू कंट्रोल. इंटरनेट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमंस. Both बिकॉज़ आपने friend as well as enemy. हाँ, नहीं फ्रेंड एक फ्रेंड ही सबसे बड़ा एनिमी होता है बिकॉज़ उसको आपको पता है आपकी सारे तो आप उनको इंटरनेट दे तो दिया, आप यूज करना किसी को नहीं सिखा रहे. हमारे यहाँ पे कितने कोर्सेज होते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए, सबको पता है. आप कमेंट डालूंगा चले जाएगा, बट क्या डालना है, किसको डालना है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा. आप जेल में जा सकते हो या उसको मेंटल ट्रॉमा हो सकता है. जो मेंटल हेल्थ की बात करें, व्हाई, बिकॉज़ पीपल आर सीइंग सो मच नेगेटिविटी ऑल ओवर. सो वो जो बच्चा जो स्कूल डेली जा सकता था वो अब घर में बैठ के पूरे दिन बस फोन यूज करेगा. तो जिसके पास डिवाइसेस है उसके तो इश्यूज हैं. अब जिनके पास डिवाइसेस नहीं है वो पूरी रात वेट करता है कि पापा आएंगे तो मैं पढ़ूंगा. हाँ. क्योंकि लॉकडाउन में भी एसेंशियल सर्विसेज चली तो जो जितने ड्राइवर्स वगैरह थे उनका वो तो अब उसके पास अब डिवाइस मिल भी जाएगा तो इंटरनेट पैक कौन दिलवाए. आप देखो वीडियो खत्म हो जाएगा, एक क्लास हो गई इंटरनेट पैक खत्म. तो हम इनके इंटरनेट पैक्स हम अरेंज करवाते थे कि अच्छा अनलिमिटेड आप ले लो. तो दे प्रेज अ लॉट कि हाँ बिकॉज ऑफ यू 10th तक कर गया, 10th के बाद अब उसकी कोर्स हो गया वो 11th में, 11th के बाद वो 12th में प्रॉपर उसका है कि मुझे आगे जाके ये करना. तो लॉट ऑफ हेल्प इज बिकॉज व्हेन यू आर इनटू दिस फील्ड यू गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प. तो उनको वी आर जस्ट गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म कि हम कहाँ से किस तरह से इनको कनेक्ट कर सकें. Bringing you back to the same issue, you were talking about like before off the record that वो 50% tax benefit, क्योंकि लोगों के मन में इमेज है NGOs की कि पैसा लेके ब्लैक का वाइट कर देते हैं ऑल दैट जैज. तो आपने कहा था कि 50% ही है, उसमें 50,000 की लिमिट है, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए. इट इज लाइक 10% ऑफ योर ग्रॉस इनकम. तो अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो आप 1 लाख तक आप डोनेट कर सकते हो. 1 लाख का रिबेट ले सकते हो एंड वो 50% रहेगा. तो अगर आप 2 लाख डोनेट कर रहे हो तो आपका 1 लाख का आपको रिबेट मिलेगा एंड दैट इज लाइक 10% ऑफ इट. तो वो एक
स्ट्रक्चर है। अच्छा, बट दिस इज ट्रू फॉर एवरी एनजीओ इन इंडिया, मतलब यही रूल है? यही रूल है सबके लिए, जो नॉट एवरी एनजीओ जो ATG अप्रूव्ड होते हैं, जिनके पास सारे अपने एंड यू आर ATG अप्रूव्ड? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा। एक दो लोग ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा जिन्होंने एनजीओ की जेन्युइनली इमेज खराब करी है। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने पूछा था आपसे, इफ यू डोंट वांट टू indulge into the politics of it, I understand. However, there is this lady called as Teesta Setalvad, right? Then I hope and I'm sure that she was doing something good for the society initially जब उन्होंने शुरू किया था, पर इन पे कुछ बहुत ही अजीब से आरोप लगे हैं कि she took some funds from some political party or some government and utilize it to tarnish image of one of the biggest politician of her state. And while there was 2002 के दंगे हुए and all that jazz, right? तो इनके लोग हैं। दूसरा एक और नाम अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इसके बहुत बदनामी मिली, उनका नाम है रना अयूब। उनके साथ भी यही हुआ कि उन्होंने 2.7 करोड़ रुपए जो शायद पर्सनल, तीस्ता ने भी शायद 10-11 या कुछ अमाउंट है करोड़ों में है जो कि उन्होंने अपने ऊपर स्पेंड करा। इस लेडी ने भी 2.7 करोड़ रुपए अपने ऊपर स्पेंड करा एंड दे स्पेंड इट ऑन लग्जरी, कि डैड के नाम कुछ पैसे भेज दिए, किसी और के नाम कुछ पैसे भेज दिए। ये लोग आप लोगों का काम कितना मुश्किल करते हैं। बहुत, I mean, as we have already discussed this, कि NGO is, लोगों को लगता है कि NGO है तो they चोर है, which is not fact. There are people who are actually working on ground. पर मुझे ऐसा लगता है कि चोर 10% कहेंगे 100 में से, ये कम और कम होंगे, ज्यादा ही होंगे। अच्छा ज्यादा होंगे, क्या आपको क्या लगता है, अंदाजन क्या लगता है? I guess 50% होंगे। I mean again, you're on tough job bro. Very tough, because हमारे पास भी volunteer, अभी एक इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ था। So there was this lady who came with a lot of stuff and उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया and वो खड़ी हो गई वहाँ पे, फोटो लेने में। ओके, और कुछ करना? शी वाज लाइक हाँ, आप सामान वापस कब लेंगे हम इनसे? लाइक सामान क्यों लेना? कह रही नहीं, लास्ट टाइम मैं जहाँ गई थी उन्होंने ऐसे दिया, फोटोज खींची और सामान हमें वापस कर दिया था। यहाँ पे आपको सामान वापस नहीं मिलेगा। सीरियसली भाई साहब, सो ये मेरे लिए नया है। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे, इसलिए हम जब भी हम इवन किसी को बोलते हैं आप डोनेट सामान का वापस कर रहे हो, had I been you I would have like seriously bitch are you crazy? I mean, so हम उनको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन डोनेट, आपको तो ये बोलना पड़ेगा कि भाई सामान वापस नहीं करते। हम बोलते हैं आप आओ और खुद आके, and we have no threat of calling people on ground because हमारा स्ट्रक्चर है। हम सबको बोलते हैं आप पहले आओ, टाइम स्पेंड करो, आपको समझ आता है तो आप you donate stationery, eatables, or if you want to donate mats, fine, जो आपको लग रहा है वहाँ जरूरत है वो करो, otherwise it's okay. We are not someone कि हमने Instagram पे दिखा दिया बहुत फैंसी सी वीडियो कि हाँ भाई फलाने को कैंसर है, इतने लाख अरेंज कर दो, ये उसका सर्टिफिकेट है। हाँ, आगे कोई बड़ी अजीब से नहीं, एक और भी देखता हूँ मैं ऐसे, क्या जरूरी है कि उस बीमारी की फोटो खींच के डाली जाए every time whenever you see इसको डोनेट, ये बच्चा, and बच्चा is like something is very weird face, weird stomach, वो फोटो खींच के डालना जरूरी है? I don't think so, because there are a lot of people who will just move on, कह रहे बाप रे नहीं देखना मुझे। एंड प्लस वो कितना रियलिटी, बिकॉज आप सिर्फ ले रहे हो उसका, आप कितना आप उनको बुला रहे हो कि इस बच्चे को आके हॉस्पिटल में आप देखो, ये बच्चा है एडमिट है, आप यहाँ आओ देखो, उसको जस्टिफाई करो। आप द मोमेंट यू स्टार्ट कॉलिंग आउट कि ठीक है मुझे आके देखना है, आई विल टेल यू मेजॉरिटी ऑफ देम वुड से कि अच्छा नहीं अब हम फंस गए। So, हम ओपनली बोलते हैं आप बीच में एंजेलिना जोली के ऊपर, मैडोना के ऊपर पता है ना आरोप लगे थे कि उन्होंने स्टूडियो में शूट कर दिया कि हम अफ्रीका में हैं। Are you aware of that? That they have shot, एक मक्खी होती है जो आंख के अंदर जरूर जाती है, हर वीडियो में जाती है, and they were like कि भाई ये मक्खी बड़ी अजीब सी नहीं है, मतलब मैडोना में भी गई थी, इसमें भी चली गई, ये मक्खी उसको पता तो नहीं है कि सेलिब्रिटी शूट हो रहा है। तो it's not an Indian scenario, it's globally worst है। एक मैं वो भी बताता हूँ आपको कि I heard that, what is the name of that fat guy? लिखना द बिगेस्ट डोनेशन टू गेट्स फाउंडेशन, उस बंदे का नाम आ जाएगा, उसमें $23 बिलियन डोनेट कर दिए। इस गेट फाउंडेशन जो इनकी है, बिल गेट्स और उनकी मिलिंडा गेट्स की थी, बिल गेट्स मिलिंडा गेट्स करके डाल आ जाएगा। वो बुड्ढा है यार, बहुत फेमस है वो, क्या कैसे नाम लिया, ही इज 4th richest man in the world or 5th richest man in the world। तो
अच्छा, फिर मुझे लगता था कि $23 बिलियन का मतलब हुआ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गरीबी नहीं होगी फिर, क्योंकि बिल गेट्स ने बोला मैं 10 बिलियन डाल रहा हूँ, उसकी बीवी ने बोला 2-4 बिलियन मैं डाल रही हूँ, और 23 बिलियन उसने शायद डोनेट करे कि मैं अब मरने वाला हूँ तो आई वांट टू डोनेट $23 बिलियन। एंड आई वाज लाइक 30 बिलियन 32 बिलियन इज गुड इनफ टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देन आई केम टू नो they are just vouching for it, they're not giving that money, they're not giving shit to anybody, वो वाउच कर रहे हैं एंड दैट्स इट। क्योंकि वो जैसे ही वाउच करते हैं उनको बहुत तगड़ी टैक्स रिबेट मिल जाती है वाउच करते ही, उसके बाद फिर वो बता देते हैं मुझे नुकसान हो गया भाई, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इतना। इसके बारे में क्या कहेंगे? That's a very common thing, even for the corporates. So that's one of the reasons we don't usually go out to corporates and ask for it, because they have this set structures. एक तो they'll ask you to do a certain thing which usually doesn't comply with your objectives and mission. So हमारे साथ भी experiences हैं, there were people who said कि हम we want to do this, but हम I'll give you an example without taking the name. There was this organization which came to us and said कि दिल्ली में हमें एक सर्वे कराना है कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, और आप उनका एडमिशन कराइए, आपका जितना खर्चा होगा, जितने वॉलंटियर्स की पेमेंट होगी, हम सैलरी देंगे, हम सब कुछ करेंगे। I said, ओके कितने वॉलंटियर्स आप लगाओ, 4-5 वॉलंटियर्स लगाओ, 25-30 हज़ार जो सैलरी अवेलेबल है, हमारे वॉलंटियर सैलरी नहीं, आप लोगों को फुल टाइम कराओ और बच्चे उठाओ और स्कूल में एडमिशन कराओ। हमने ट्रायल एक्सपेरिमेंट किया, जस्ट उसी टाइम मुझे डेटा मिला कि जितने बच्चे हम कर रहे थे मेजॉरिटी वो स्कूल में एडमिशन, तो हमने उनको बोला कि ऐसे से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जो हैं भी उनके, दे आर नॉट इन अ कंडीशन कि उनका स्कूल में एडमिशन कराओ, बिकॉज किसी की एज ज़्यादा है, किसी को नॉलेज कम है, तो हमारे पास तो इतनी पावर नहीं है कि हम जाके स्कूल में कराएं। सो इंस्टेड ऑफ दिस आप एक काम करो, हमारे नोएडा वाला जो हमारा एक सेंटर है वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे हमारे पास है अराउंड 40-50 बच्चे जिनको हेल्प चाहिए, आप उनको स्पॉन्सर कर दो, आप उनकी एजुकेशन। नहीं हम उनको नहीं करेंगे, हमें दिल्ली के इस एरिया के बच्चे चाहिए जो स्कूल नहीं जाते। लाइक ये क्या कंडीशन है आपकी? मतलब अगर एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि कौन से बच्चे को पढ़ाना है, किसको नहीं पढ़ाना, तो आप कौन? नहीं, हमारा ये क्राइटेरिया है क्योंकि इसके बेसिस पे हमें आगे कुछ क्लेम तो आप जबरदस्ती शो कर दो कि हम बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। हाँ, वो कई बार भी आपको मिलेंगे वो लोग जो एक पर्टिकुलर पार्टी के होंगे जो गवर्नमेंट पे अटैक करना चाहते हैं, इसलिए निकालना चाहते हैं। दिस इज नॉट, आप मुझे पैसे दे दोगे बट मैं 8 साल से जो काम कर रहा हूँ, I can't play with that. मतलब just because of your few thousands, I can't just change my vision. What about, forget about thousands? What about what I really feel from inside? You want me to just really change it because you have some certain objectives. आपको तो वो भी लोग मिलेंगे, क्या कहते हैं उसे, जो आपके बच्चों में रिलीजन वाइज डिस्क्रिमिनेट करेंगे, या बच्चे भी आपस में करते हैं। क्या चलता है ग्राउंड लेवल? स्टार्टिंग में जब हमने बहुत स्टार्टिंग में किया था तब उनको होता था मंदिर में नहीं पढ़ना, अरे ये यहाँ के मंदिर में क्यों आ गए। अब कई लोग हैं बिकॉज वो मंदिर है, नवरात्रों में कई बार आ जाते हैं कि ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये अंडा खा के अंदर आते हैं। आपको कैसे पता वो अंडा खा के आए? नहीं, ये लोग तो खाते हैं, एज्यूम कर लिया ना। और आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपने एक दिन आके यहाँ पे दिया नहीं जलाया, आपने एक दिन आके यहाँ झाड़ू नहीं लगाया, हम आके दिन में 2 बार आने से पहले और जाने के बाद झाड़ू लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप आके हमसे लड़ रहे हो साल में एक बार कि ये बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा बिकॉज ये अंडा खा के। तुम्हें किसने राइट दिया ये अंडा खा के? दो भारत के 2 रिलीजन की बात बताऊंगा। 2 भारत के 2 महान काव्य हैं, रामायण और महाभारत। Both of them were written by the people who belong to the scheduled caste community. So that's what I'm saying. Right? Exactly. You accept that, but you have issues otherwise. So तभी मैंने बोला है कि if you keep going with your beliefs, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हर पॉइंट पे लोग मिलेंगे, और अगर आपके बिलीव्स में तो आप कहीं ना कहीं आप पिघल जाओगे। हाँ। अब 200 बच्चे बैठे हैं, हाउ डू यू मेक श्योर कौन अंडा खा के आया नवरात्रों में? वॉलंटियर्स खा के आ सकते हैं, That's true. और उसके बेसिस पे बोलते हैं हम क्लास नहीं चलने देंगे क्योंकि नवरात्रों में क्लास नहीं चलेगी क्योंकि आप अंडा खा के। नहीं, बट एक बात मैं कहूँगा, जैसे I have a little different views on this. What is happening is that that these people, there are some of the people who are trying to equate Hinduism with other religions. They hear कि ऐसा वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। वो चक्कर जो है ना वो ज्यादा घटिया हो जाता है।
वो ज्यादा, बिकॉज यू नो व्हाट दे से कि तुमने क्या हम भी करके मैंने सुना कि उस टाइम पे ये हुआ था, तो इसलिए मैं करके दिखाऊंगा। मेरे यहाँ पे तो रमजान में इन्होंने दुकानें बंद रखी थी, तो मेरे यहाँ तो नहीं पढ़ाई हो रही, अब ये नवरात्र में कैसे कर सकते? 90% ऑफ केसेस में वो कहीं से सुन के आए। हाँ, क्योंकि उन्होंने या तो व्हाट्सएप में पढ़ लिया, ये कर लिया। हमारे तो हम वहीं रहते हैं, हमें पता है वो आके अच्छा ये कब हो गया, नहीं व्हाट्सएप पे आता तो ये ऐसे। फनी पता है क्या? फनी ये है कि टोयोटा जो है, they are selling their cars to the terrorists too. They are selling their cars to Pakistanis as well as Indians. They are selling it to Muslims as well as Hindu. Bottom line ये है कि जो इस दुनिया के जो creators हैं, the people who are really running this world, they don't care. Maybe they enjoy. The moment you discriminate yourself with other person, they enjoy it because they have a bigger sale. They have a business out of it. They have business out of it. And the person who struggles जो बेचारे जिनके पास रिसोर्सेज है वो एंड में वो मारे जाते हैं। सो वो प्रॉब्लम है, उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब ये सेगमेंट जो है, जिसको अंडर प्रिविलेज कह लो या अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम आवर सोसाइटी और आवर एनवायरनमेंट, उनको थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो सबसे पहले इन्हीं को प्रॉब्लम होगी, इसको क्यों हेल्प मिलेगी? ये तो मेरा टैक्स खा रहा है, वो चाहे टैक्स भरता नहीं होगा, वो टैक्स चोर होगा, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं। सबसे फनी It's like I have a call center, right? तो उसमें क्या होता था, जब मैं कहीं और भी काम करता दूसरे कॉल सेंटर्स में, तो सबसे ज्यादा खाने को वहाँ पे फ्री फूड मिलता है नाइट शिफ्ट में, बाहर कुछ मिलता है रात को, सबसे ज्यादा खाने की प्लेट इसकी भरी होती है ना, he would always say this tastes like shit man, and I'm like dude I'm not even eating it, I'm just saying कि ये ठीक है, ये एक चम्मच 2 चम्मच मैं खा लूंगा, you are eating full plate of it, and he's like what's the problem मेरे को इससे? ठीक है, that's a problem. That's human nature and that's something that we can't change. I'll also tell you एक और मतलब अभी जो बच्चे हमारे पास हैं, इंडिविजुअल्स का पता नहीं, बड़ों का पता नहीं, बट अगर सपोज किसी दिन होता है, जैसे मैंने बोला हमारे बहुत सारे हमें एक्टिव वॉलंटियर्स चाहिए बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, सो कई बार वॉलंटियर्स कम है नहीं है, तो वहाँ के बड़े बच्चे आएंगे, जैसे आज हम छोटे बच्चे को पढ़ा देते हैं, सो दैट हैबिट ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग जो हम लोगों में भी नहीं है, और स्लम्स में तो बिल्कुल नहीं थी, वहाँ पे लोगों को आदत होती है छीन के खाने की, तेरे पास है मैं चुरा लूं। वो कई बच्चों में अब हमने वो हैबिट देखी है, वो एक दूसरे को अच्छा तुझे नहीं आता मैं सिखा देता हूँ, फोर्थ का बच्चा फर्स्ट के बच्चे को। वो मूवी देखिए डिक्टेटर, उसमें नहीं बोलता कि आई एक्सेप्ट योर जॉब एज जनरल मैनेजर एंड शी सेज यू कैन बी मैनेजर, आई एम ऑलरेडी द मैनेजर, एंड ही सेज नॉट इफ आई किल यू, you know what I'm saying? So if I want to steal something from you, it's mine, right? बट वो शेयरिंग वाला है, सो वो जब देखते हैं पीपल आर कमिंग एंड दे आर गिविंग देयर टाइम एंड एफर्ट, सो दे आर आल्सो ओवर द इयर्स दे हैव आल्सो अडॉप्टेड कि ठीक है वी आर आल्सो देयर टू हेल्प, इवन उनके पास ना हो बट है कि हम कर देंगे किसी को। एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है करंट सरकार को लेके, जो केंद्र में है, उनके ऊपर बड़े आरोप लगते हैं कि वो उन्हीं एनजीओ को टारगेट कर रहे हैं जो विदेशों से फंड लेते हैं और इनके खिलाफ, या कह लीजिए कि ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनमें इनके खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर होता है। एक तो ये सवाल है, 2011 से 2022 तक 20,000 एनजीओस की विदेश फंडिंग बंद कर दी गई है। तो आपके क्या व्यूज हैं? इवन इफ यू डोंट वांट टू टेक अ पॉलिटिकल पोजीशन, आई एम फाइन विद दैट, बट क्या व्यूज हैं आपके? I think every government, some of the other way they play. उनको whosoever is pro, it's not specifically to one, but जो भी power में आते हैं, they want to be in power. And to be in power, they remain in power. हाँ, to remain in power, they use all the hooks and looks to be there. And I don't think specifically कि हाँ, because again, point is, as a human, we are judgmental. Right? मुझे मैंने कहीं देखा, पढ़ा, मैंने मान लिया. We don't wait for the final. And that is, I guess, media is playing that role आज के टाइम पे कि कुछ हुआ immediately ये तो चोर है उसका रिजल्ट तो आने, तो रिजल्ट कभी उतना नहीं आएगा, and that has happened multiple times. आपका जब कोई फंसेगा फ्रंट पेज पे होगा, जब कोई छूट के आ जाएगा वो छोटा सा आएगा कि ये इसको बेल मिलेगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड अभी मुझे दिमाग वही एग्जांपल आ रहा है, बिकॉज़ पीपल माइट से कि मैं राइट विंग से हूँ, बट आई एम नॉट। एक शंकराचार्य थे कांची के, उनके ऊपर रेप के आरोप लगे, उनको रात को 1 बजे उठाया गया, जेल में डाल दिया गया। उनके ऊपर 6000 घंटे की कवरेज हुई सारे मीडिया चैनल की कि हाउ ही इज अ रेपिस्ट, बट अल्टीमेटली इट वाज फाउंड दैट ही डिड नॉट इवन रेप एनीबॉडी, इट वाज द प्रायोजित कार्यक्रम ऑफ द करंट गवर्नमेंट टू मेक श्योर हिज इमेज इज टार्निश्ड। और जब वो छूटे हैं उसके बाद उनके ऊपर 2-2.5 घंटे की कवरेज हुई, जो उनके आसपास के जो लोग थे कि भैया ये तो कुछ भी नहीं था, ये सब बकवास थी, कोई कवरेज नहीं थी।
सो वो है, यू नेवर नो कि कौन सा है, बिकॉज छोटा सा प्रूफ मिलके हमें कभी नहीं पता चलेगा बैन होने के पीछे रीजन क्या है, राइट? सो आई वुड नॉट कमेंट कि वो जेन्युइन थे सच में, यू नो, अगर वो नहीं थे जेन्युइन, सो हाउ आर दे एक्चुअली ऑपरेटिंग? दैट्स अ फ्लॉ ऑफ द सिस्टम. Government had said that these are traitors. They also said that they are getting funds. Like George Soros का issue आया था बीच में. They're getting funds from the people who doesn't want India to function as a democracy because they think that if India becomes powerful, then it's a threat to the global powers which are already in existence. अब इनके जो reasons हैं वो भी थोड़े flawed लगते हैं. बट जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है दे कम वो ऐसी बातों में आ जाते हैं, यू नो इट, है ना? आप जहां पढ़ाते हो वहीं बोलो विदेश की साजिश है हमारे खिलाफ, सब मान जाएंगे. बिल्कुल सही दो चीजें बहुत इजीली सेल होती है, एक विदेशी साजिश और एक है आपका एंटी नेशनल. हाँ. आप कुछ भी बोले तो एंटी नेशनल है, तो वो हर बात पे आप कुछ भी करो, डजंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका यू नो फ्यूचर क्या है, आप कहाँ इन्वॉल्व हो, आप यू आर अगेंस्ट मी तो तुम गलत है. आई गेस दैट सेल्स ऑफ लोग इजीली उसे एक्सेप्ट करते हैं, लोग इमोशनल. 16th-17th सेंचुरी में यूनाइटेड किंगडम जर्मनी में जो वेटिकन सिटी चर्च था, दे यूज्ड टू सेल स्वर्ग के वो सर्टिफिकेट्स. सो इफ यू बाय माय सर्टिफिकेट इट्स अ गारंटी यू विल गो टू स्वर्ग. तो वही वाला हाल है कि भारत सरकार या जो लोग एंटी नेशनल, दे शुड आल्सो इशू अ सर्टिफिकेट. नाउ आई हैव स्पोकन टू माय फ्रेंड सो यू आर नेशनल, यू आर नेशन. ये रहा मेरा लेटर, आज से आप नेशनलिस्ट हो गए हैं, डन. फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इन द करंट नेशनलिस्ट पार्टी. वो जब बाहर होते हैं तो एंटी नेशनलिस्ट हो जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं, जैसे अंदर होते हैं. इवन द दिल्ली गवर्नमेंट हैज द सेम थिंग, आम आदमी पार्टी. उसमें जो लोग बाहर थे तो करप्ट थे, जब वो अंदर आ गए तो नहीं मैंने खुद चेक किया है, बहुत अच्छा है ये. अच्छा, तो could you please tell the world the name of your NGO and you know, and what are your future objectives next 5 years? Right. So organization's name is Pehchan the Street School. Pehchan means identity, like you're trying to give identity to people who I believe you actually have, you know, zero vision outside their environment. And street school is because it's an open thing. It's not a structured school. जहाँ जगह मिली हम पढ़ाते हैं, हम पार्क्स में पढ़ाते हैं, हम मैंने बोला मस्जिद में पढ़ाते हैं, मंदिर में सेंटर है, कई जगह पे नाले के पास हमारे सेंटर्स हैं. अभी हमने GTB नगर में एक नया सेंटर खोला था पार्क में. I'll tell you this example. वहाँ के जो RWA के थे, तो वहाँ पे जो स्लम है, एक RWA में भी इट्स अ प्रॉपर सोसाइटी की रोड क्रॉस करती स्लम है, तो सोसाइटी का पार्क है, वहाँ पे दे डोंट अलाउ वहाँ के बच्चे आने. अच्छा, स्लम के बच्चे वहाँ पे पार्क है. तो अभी हम हमने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना क्लासेस ली, उसके बाद एकदम से वहाँ के RWA के प्रेसिडेंट आते हैं एंड ही इज लाइक कि यहाँ क्लासेस नहीं होगी. क्यों? हमने ना नई घास लगाई है, बच्चे तोड़ जाएंगे. 2 महीने जब तक घास नहीं होगी कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं. और वो अपने जो रिटायर्ड वेरी एजुकेटेड पर्सन है, और ऊपर से पता है ये लोग अपने बच्चों को भी सिखाते होंगे गरीबों का कुछ नहीं हो रहा इस देश में. यही लोग हैं जो बोलते हैं ऐसी बकवास. मतलब मेरा मन क्या उनको बोलूं कि आपको घास से ज्यादा, मतलब किसी की पढ़ाई से ज्यादा आपको घास की वैल्यू है. बट ही वाज वेरी, यू नो, नहीं मैं तो नहीं करूंगा. उन्होंने पार्क में ताला लगवा दिया गार्ड से. उनके गार्ड पूरे वो बड़ा सा ग्राउंड है, उसके बाहर गार्ड बैठता है, उस पे ताला लगता है कि कोई बाहर से बच्चा नहीं. हाँ, नफरत पे पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है. एंड व्हाट इज द पहचान स्ट्रीट स्कूल का फ्यूचर 5 साल में क्या सोच रहे हैं आप लोग? अभी वी आर ट्राइंग टू, अगेन एज आई सेड, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म. अभी इनिशियली वी वर ओनली इनटू एजुकेशन, उसके बाद लॉकडाउन के बाद वी वर लाइक कंप्लीटली जीरो. अब लास्ट 2 years में अगेन वी हैव ओपन ऑलमोस्ट 10 सेंटर्स. अब इन बच्चों के लिए अभी तक हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, बट एजुकेशन के साथ साथ वी आर नाउ ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद मल्टीपल अदर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन वेरियस एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ सेक्टर में है तो इन बच्चों के लिए रेगुलर हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज कराना, इनके लिए मेंटल हेल्थ सेशंस ऑर्गेनाइज कराना, इनकी काउंसलिंग कराना. किसी को डांस में इंटरेस्ट है तो कैसे उसका फ्यूचर बना सकते हैं. दैट इज वन पार्ट. सेकेंड, हम वोकेशनल सेंटर्स में कि जो बच्चे ये हैं जो स्कूल जा ही नहीं सकते, ड्रॉप आउट्स हो गए या जिसने अपना 10th कर लिया उसको नहीं पता आगे क्या करना, तो उनको बेसिक कंप्यूटर कोर्स या किसी और टाइप के कोर्स दैट कैन हेल्प देम प्रोफेशनली. दैट इज सेकेंडली दैट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फोकस ऑन. थर्ड इज जो उनकी फैमिलीज है. अब बच्चों की फैमिलीज, कई बार उनकी मदर्स आती हैं कि हमारे पास कि हमें
कुछ इनकम के लिए कुछ करा दो, हमें कुछ आता नहीं है। तो उनके किस वे में कि क्या उनके लिए हम कुछ ऐसा सेटअप कर सकते हैं एडल्ट्स के लिए भी बिकॉज सबको पढ़ना है। सी आज के टाइम पे एवरीवन वांट्स टू लर्न, तो क्या उनको कोई इंग्लिश कोर्स करवा सकते हैं? कोई अगर घर में कोई लेडी है उसको ब्यूटिशियन का कोर्स या किसी को स्टिचिंग सिखा सकते हैं, सो दैट वो अपना एक बेसिक सेटअप कर लेता हूँ। ऑल दीज थिंग्स इट नीड्स रिसोर्सेज। उसके लिए हम वी आर टॉकिंग टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी इस फील्ड में है और कर रही है कि हम उनको या तो उनको कनेक्ट करा दें या उनको बोले कि ठीक है हमारा सेंटर है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप आके बड़ों को पढ़ाओ। तब उस पर थोड़ा हमारा फोकस है कि किस तरह से और ज़्यादा इसको, बिकॉज सी अगेन पढ़ाना इज ईजी। बहुत सारे एनजीओज आपको मिलेंगे जो आज के टाइम पे गली में जाके पढ़ाते हैं, सबके इंटेंशंस आर गुड, बट पॉइंट इज कितना उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एज आई सेड, आप किसी को खिला रहे हो बट वो खाना सिर्फ तब तक है जब तक वो उसके 6 घंटे पूरे नहीं होते। आप किसी के साथ 2 घंटे स्पेंड कर रहे हो, 3 घंटे स्पेंड कर रहे हो, वो तब तक तो सीख रहा है, बट जैसे ही आप गए उस आपके साथ आपकी नॉलेज चले गई, अनलेस एंड अनटिल उसको आप रेगुलरली वो मार के उसको सिखा रहे हो, डांट के सिखा रहे हो, प्यार से सिखा रहे हो। तो वी वांट कि जो भी हम टाइम दे रहे हैं वो इट स्टेज विद देम इवन इट फॉर अ व्हाइल, बट कुछ उनको इम्पैक्टफुल हो। इट्स नॉट जस्ट कि हम गए, हमने किया, हम खुश हो गए, वो सोशल वर्क नहीं है। वो तो फिर दैट्स अभी जो वॉलंटियर्स हैं आपके पास, उसमें क्या रेशो है, जेंडर रेशो क्या है? 70% आर women. They are 70% are women? Yes. अच्छा जी, मैं कुछ और सोच रहा था, मेरा 70% मेन होंगे। क्या बात है? I didn't know that. स्लम्स में these girls, these ladies when they come यहाँ पे स्लम में गर्मी में वो पढ़ाती हैं। लड़के भी हैं, बट हाँ लड़कियों का रेशियो ज़्यादा है। आई गेस दे आर मोर कनेक्टेड विद चिल्ड्रन, दैट्स द रीजन। So They're more compassionate, I guess. They are more consistent because वो रेगुलरली कर लेते हैं। लड़कों का कई बार हो जाता है कि हम नहीं करते, बट हाँ कुछ लड़के भी हैं। हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में भी 3 लड़के हैं। तीनों हम लोग सब स्टार्टिंग से ही हम लोग कनेक्टेड हैं, एंड एवरीवन इज स्पेंडिंग टाइम। क्या बात है। एंड व्हाट इज योर, जैसे अभी कोई हाइपोथेटिकली XYZ है जिसको ये करना है कि मैं भी शुरू करना चाहता हूँ अपना एनजीओ, उसके बारे में क्या क्या एडवाइसेस देंगे आप उसको? ये तो नहीं बोलेंगे प्लीज मत कर भाई, बहुत मुश्किल हो रही है। आप ये सोच के मत आओ कि मुझे एनजीओ खोलना है। आपका एक विजन होना चाहिए, आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड आप उस पर फोकस करो। बाकी सब चीजें अपने आप लाइन हो जाती है। आपका ऑर्गेनाइजेशन, कई लोगों को होता है हम पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे फिर काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, उसके बाद उनको समझ नहीं आता कि करना है। अब क्या करें, बन गए 5 लोग दिए आपने, 10-15 हज़ार लगाए, आपका एनजीओ रजिस्टर हो गया, सब डॉक्यूमेंट हो गया, ऑफिस खुल गया, अब क्या करें? वहां पे वो फंस जाते हैं। तो पहले आप निकलो बाहर, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस पे स्पेंड एटलीस्ट गुड 1 to 3 years and see if you actually want to do this. When you feel कि नहीं, this is something that I want to do because this is giving me satisfaction, then go into professionalism. मतलब एनजीओ खोल के बहुत लोग बैठे हैं, जब तक उनको रियलाइज होता है कि हाँ एनजीओ रजिस्टर हो गया, तब तक उनका फिर मूड ऑफ हो जाता है कि यार ये तो इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। एक और सवाल है मेरे पास आपके वॉलंटियर्स को लेकर। वॉलंटियर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब who belongs to rich families, और फिर उनको लगता है कि I'm doing a favor, on you. ऐसा कुछ है? ऐसा फील हुआ कभी? बहुत वॉलंटियर्स आते हैं। So the best part of doing this on volunteer basis is कि जो ऐसे लोग होते हैं वो पहले 2-3 दिन में फिल्टर आउट हो जाते हैं। हमारे सपोज हमारे 10 वॉलंटियर आए, तो 10 में से सिर्फ 4 या 5 ही होंगे जो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करते हैं, और जो करते हैं वो फिर जेन्युइनली करते हैं बिकॉज उनको कुछ मिल नहीं रहा है। वो अपने जेब से पैसा लगा के आ रहे हैं, वो अपनी जेब से एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो धूप में बैठते हैं, पसीना आता है, चोट लगती है क्योंकि अपने पत्थरों में कहीं जा रहे हो, नाले के पास मच्छर काट रहे हैं, तो वो अगर इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और वो कंटिन्यू कर रहा है, तो मतलब दे हैव देयर फीलिंग्स एंड दे हैव ऑल द कंपैशन फॉर देम। जो ऐसे होते हैं वो 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, उसके बाद अपने वो 4 वीडियो बना के वो अपने सेटल हो जाएंगे। सही बात है। एक तो वीडियो बनाने का बड़ा जबरदस्त है भाई, वीडियो बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टू लेट यू नो, वी आल्सो हैव अ जस्ट विश, इट्स नॉट अ एनजीओ, इट्स अ ट्रस्ट. So we are not into teaching or any public relations, but we are mainly into funding things. Like for example, we have funded a school in Uttarakhand. We have funded a bridge in Uttarakhand on a river. And what else? And we're also building Hanumanji statue, which will also have a big gem around it. But I personally think that religion gives people a purpose or something. For example, Hanumanji statue with a gym. Now people will come to your gym. Because what happens is if you keep a gym open for free,
very motivated people will come. Nobody else will come. But the moment you relate it with the religion and say Bajrang Bali ki kripa and all that jazz, chances है कि लोग बढ़ जाते हैं थोड़े से. So we are doing a lot of stuff. I mean, बहुत सारा है तो we'll discuss it off the record. ठीक है. But I'm very happy यार आकाश. क्या काम कर रहे हो? Awesome. And then मेरे पास सबसे अच्छी बात क्या है कि when I decided to speak to you, you know how NGO की जो इमेज है, ठीक है, मुझे लगा भाई चलो एक और बंदा आएगा जो फेक आर्ग्यूमेंट्स देगा अपने कि देखो मैं कमाल कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ. बट आई फेल्ट अ काइंड ऑफ कनेक्शन विद योर स्कूल एक्चुअली बिकॉज you mean business. I mean, you're not just sitting here and bullshitting कि ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसे कर दिया. You have faced genuine issues and I'm a businessman so I could feel कि हाँ issues face करें तभी इसको याद है सारे. Otherwise याद नहीं रहते issues. जो झूठ बोलता है उसको issues नहीं याद रहते. So it's been good 8 years and it's not just 8 years, right? And all the volunteers we have been people who have been working us for 6, 7 years. So अपना weekend में जब लोग पार्टी कर रहे होते हैं वो वहाँ धूप में बैठे होते हैं ना, फ्रेंड्स की गालियाँ पड़ती हैं, आप मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, हमारे पास नहीं होता टाइम. आप 6 दिन इवन इनिशियली सबकी फैमिलीज, अभी कई वॉलंटियर्स हैं जो घर में झूठ बोल के आते हैं बिकॉज देयर फैमिलीज डोंट सपोर्ट कि आप अब 6 दिन आपने कॉलेज में कि आप एक दिन आप और घर पे नहीं हो, चले गए हो, क्या मिल रहा है. बट वी हैव वॉलंटियर्स जो घर पे झूठ बोल के आते हैं, लड़के आते हैं, उनको लिटरली हमारे सामने ना फोन पे डांट पड़ती है कि कहाँ हो तुम, फिर आज वहाँ गए? नहीं वहाँ नहीं गई, मैं बस नोट्स लेने आई थी, मैं आ रहा हूँ वापस, मैं आ रहा हूँ. सो वो कंपैशन दिखता है एंड दैट इज व्हाट मोटिवेट्स एज एन इंडिविजुअल ऑल ऑफ अस कि आप जैसे आपने बोला कि डीमोटिवेट नहीं होता, तो obviously there's a thought of negativity or demotivation, but then there's so much of positivity around you because कि आप you're not giving up, that's why there's so many people who are holding on to you. So नहीं, मुझे वो लगता है कि ऑनेस्टी, अगर आपने जेन्युइनली मेहनत करी है, जेन्युइनली अगर और आपके विजन क्लियर, आपको क्यों कर रहे हो मेहनत, व्हाई आर यू डूइंग इट, तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं. फिर वो प्रॉब्लम झूठ के साथ क्या होता है, बहुत दिन तक चलता नहीं है, वो गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा मामला, और सच जो है वो टिका रहता है. आई होप कि ये सच हो. जो भी मैंने इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है कि सच टिका रहता है, झूठ निपट जाता है. ठीक है. All right, Akash, very nice talking to you, and I hope that that you guys become the largest NGO in Delhi NCR. We don't want to be the largest. I always say that अभी मैंने आपको ये वो चीज़ बोली थी, we don't believe in faces. मैं पहचान से हूँ या मैं 8 साल से कर रहा हूँ doesn't mean कि आपको मेरे साथ काम करना है या पहचान के साथ काम करना है. We believe we have a vision and doesn't matter आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करना है ना. आपके घर के आसपास इतने लोग होंगे जिनको पढ़ना होगा, आपकी मेड से लेके आपका गार्ड, आपका ड्राइवर, उनके बच्चे, उनके आपको हेल्प करनी है और आपको जेन्युइनली हेल्प करनी है. आपको प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, आप कर सकते हो. आपको प्लेटफॉर्म तब चाहिए होता है जब आपको कुछ दिखाना हो. What about these women society की जो ladies होती है, oh my god, let me teach these kids. You know what I'm saying, exactly, right? Oh, you know what I do? I have like 10 different kids. They come from slum areas. I teach them. Right? What do you have to say about that nonsense? Social work. So everyone wants to be or believe that they are social activists or social workers. But ठीक है. I have met a couple of such people. I have met them, and believe me, it's torturing. When I meet these such women or men. I'll tell you one more example. There was this girl. She was a US return. वो इंडिया में आके कुछ अपना बिजनेस कर रही थी. 6-7 साल उसने बाहर काम किया. So she called me one Friday and she was like, "Okay, I searched about you on the LinkedIn and everything. So I want to work with you." I said, "Okay, sir, who are you?" मैंने कहा, "I'm one of the trustees of this organization." Like, "Oh, really? आप खुद फोन उठाते हो, आप खुद बात करो." I'm so impressed. उसने मेरे से I still remember 90 minute 38 seconds बात करी. उसने अपनी पूरी मुझे हिस्ट्री बता दी. मैं ये करती मैं यहाँ का विजन बदल दूंगी, मैं ये कर दूंगी. मैं एंड में मैंने बोला, आप एक बार आके बात कर लो. It's been 90 minutes I'm on call. I have a job. वो आई ग्राउंड पे वो एक दिन आई है, भाग गई. क्यों? आप तो पार्क में पढ़ाते हो, यहाँ तो कोई क्लीनलीनेस नहीं है, बच्चे हाथ धो के नहीं आते, यहाँ तो इतनी धूप है, ये कैसी एजुकेशन दे रहे हो? आपका पेज तो बोलता है आपका स्कूल चल रहा है. फिर आपने क्या 90 मिनट्स में आपने एक्सप्लोर किया? आप स्लम के बच्चों को कैसे बोलते हो कि वो हाथ धो के आए? आप अगर स्लम में पढ़ा रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो कि वो जगह साफ होनी चाहिए? एक मेरे जान पहचान की महिला है, वो भी एक फाउंडेशन रन करती है. उनके फाउंडेशन में जब वो उनकी पिक्चर्स पोस्ट होती है लिंक्डइन पे,
वो महिला फुल मेकअप में होती है, मतलब ऐसा लगता है कि शी वेंट टू अ पार्लर एंड इट्स लाइक एनजीओ लुक दे दे मुझे। तो पार्लर में जाके एनजीओ लुक लेती है फुल मेकअप में, और एंड शी इज वेरी प्रिटी एंड शी इज टॉल, यू नो। तो वो एक साड़ी एक बहुत सेक्सी अंदाज में बांध के, अदरवाइज शी नेवर वेयर्स अ साड़ी, बट जब एनजीओ आता है शी ऑलवेज इन अ साड़ी एंड ऑलवेज शी क्लिक्स पिक्चर्स लाइक दिस। हाँ बेटा, लाइक यू नो, उसके कैमरामैन रेडी रहते हैं ना कि हाँ कैंडिडेट के रेडी रहते हैं, और ये एंड आई एम लाइक हे भगवान, आर यू, शी वांट्स टू कम टू माय पॉडकास्ट, सॉरी बाद में बुलाऊंगा 2-3 महीने बाद जब ये पॉडकास्ट भूल जाओगी तब। बट मुझे उसको देख के वो फेकनेस ना आती है ऐसे भर भर के कि फेक है ये, जो भी हो रहा है ये फेक है, रियल नहीं है। And it was what you said and what I have spoken to you, it was all real. And you know, I'll not say that, oh, I want to be part of this, but you know, if because I'm already doing something. So, but if you somewhere when you do all these 3 drives for Diwali, Holi, and all that jazz, please let me know. I'll definitely contribute to it. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Mr. Tandon. Thank you very much that you came to our show. One thing is that please go and visit Pehchan Street School, and you guys are there on Instagram and everywhere, right? Yeah. Please visit that page, and you guys also think if you can be the real volunteers, please go ahead and be a volunteer. नौटंकी करनी है तब भी जा सकते हो, just go for one day, do all that photo clicks and the way he explained it, फोटो खिंचाओ बढ़िया बच्चों के साथ, तो खाने का सामान लेके आओ, स्टेशनरी लेके आओ, हाँ, this is what I define this. What people do is poverty porn. मजा आता है, you know, you want to have fun, गरीबी का sex, you know what I'm saying? I'm sorry to use that term, but that's what it is. Poverty porn के लिए जाते हैं लोग गरीबी में कि oh my God, see how महान I am. जो लोग genuinely कर रहे हैं बहुत उनकी हालत खराब है, क्योंकि जब genuinely करने लग जाओ ना तो frustration भी आती है कि यार इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ, मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ यार, पर कोई थैंक यू भी नहीं बोल रहा मुझे। तो जो आपको जेन्युइनली अगर करना है, then you please go and join him, and you should join him, Pankaj. Thank you very much, and please like, subscribe, and press the bell icon. Thank you so much.